Hello friends, today we will do the second chapter, the second part of the second chapter, and the name of the chapter is the Shehnai of Bismillah Khan. Now when we start this chapter, Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan was one of the greatest Shehnai player, and he used to play Shehnai there at the sacred ghats of Banaras, Ganga, near Ganga river. So look at this word, I am underlining, this is Shehnai. When you look at this word is in the, now this Sheh. Now this Sheh, this word has come from Shah Jahan, and this Nai is the one who is barber. So the instrument which is known as Shehnai was made by the barber of Bismillah Khan. Now look at this word Bismillah Khan. He was awarded Bharat Ratna and with many of the awards bestowed upon him throughout the world. Now डू यू नो दीज पीपल. अब जैसे इसमें यहाँ पे ये हरिप्रसाद चौरसिया है. नाउ द फ्लूट, ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी जो होती है. नाउ ये वो हैं आई सपोज पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, एंड लाइक दिस ही इज़ बिस्मिल्लाह खान. नाउ think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. आज भी आप लोग जब अपने किसी वेडिंग में जाते हैं तो वेडिंग में आपने नोटिस किया होगा कि बाहर जो वेडिंग का इवेंट जिस जगह हो रहा है उस जगह बाहर वो शहनाई बजाते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ जो सपेरे होते हैं ना, तो वो सपेरे जो बजाते हैं वो पुंगी होती है, वो ऐसे बीच में से मोटी होती है, सांप का जो खेल दिखाते हैं. और जो शहनाई होती है, शहनाई वो लॉन्ग थिन ट्यूब होती है. सो जब हम बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो बात आती है एक पुराना कल्चरल जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, एंड दैट इज़ शहनाई. लेट अस सी हाउ द स्टोरी ऑफ शहनाई स्टार्टेड. Now, it all started in the court of Emperor, the Mughal emperors. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had shrill, unpleasant sound. Now, look at this word shrill. Shrill का मतलब होता है sharp. जो सांप का खेल दिखाते हैं उनकी जो वॉइस होती है, जो बजाते हैं उनकी वॉइस आपने देखी होगी कितनी piercing होती है. So shrill, the sharp, unpleasant sound. Now pungi become a generic name. Now look at this word generic name. Generic name का मतलब होता है जिस ग्रुप से वो आता है. जैसे आप बोलते हो चेयर, लेकिन जो जेनेरिक उसका मटेरियल है वो क्या है, वुड. सो जेनेरिक नेम फॉर reeded noise maker. Now reeded noise maker, as you can see, it is given here, reeded, the wind instrument which have reeds like flute, the clarinet, etc. Now आपने फ्लूट्स देखी होंगी, तो फ्लूट्स में जैसे छेद होते हैं उसी तरीके से ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं पुंगी, इसमें भी उस बम्बू जिससे बनती है उसमें छेद होते हैं, होल्स होते हैं. Few had thought that it would be one day be revived. जो पुंगी है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि
पुंगी वापस लोग बजाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो पुंगी के फॉर्म में नहीं बजाते हैं। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। नाउ बाबर जो नाई थे, और वो कौन सी फैमिली थी, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली थी, जहाँ पे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन पैदा होते थे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक राजघराना है, तो वो राजघराना, म्यूज़िक के भी राजघराने होते थे, और जो उसमें बजाने वाले लोग होते थे वो बड़े मास्टर्स होते थे, वो बड़े स्किलफुल होते थे। तो उसमें एक कम्युनिटी थी, द बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस का मतलब वो रॉयल कोर्ट में जा सकते थे। And what they decided that pungi being a very old instrument, they would make a little bit change in the shape of the pungi so that it would be good to play in the court. The music won't be shrill, the music would be soft. So what he did, the tonal quality of this pungi, he chose a pipe with a natural hollow stem that was no longer and broader than pungi and made several holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound would come. Now, इस पेज पे आप देखो कि वो जैसे एक ये यू कैन सी ऑन कैमरा, ये बहुत मोटा वो हॉलो पाइप होता है, और उस पाइप में यहाँ पे छेद करते हैं, जैसे फ्लूट में छेद करते हैं वैसे, और वो 7 होल्स उस पाइप के अंदर किए, और जब उसमें हवा फेंकते हैं तो म्यूज़िक निकलता है, और उन पाइप को क्लोज करने से हम जितने भी राग होते हैं म्यूज़िक के वो गा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड? नाउ इन द फर्स्ट स्लाइड, soft and melodious sounds were produced. Now he played the instrument. Who? That barber played the instrument before royalty. Now look at this word royalty. It's a word. ये word आपका बनता है ROYAL, royal. Royal का मतलब होता है something that is kingly. जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जो रॉयल लोग होते हैं, राजा महाराजा, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो जब इसने बजाई तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये बिल्कुल डिफरेंट था। अगर आप यहाँ पे इसमें देखेंगे, इट वाज पुंगी, ये इधर से थोड़ा सा फूला हुआ है, लुक एट दिस। एंड व्हेन यू लुक एट शहनाई यू विल फाइंड दैट इट इज़ फ्लैट, and there are 7 holes, 1 2 3 4 5 6 and 7, and it is of this shape. This is made of wood, and from here they throw the air, so the sound that would produce, that is known as Shehnai Wadan. Now as the story goes, since it was first played in Shah's chamber and was played by Nai. Nai is barber, as I said earlier. The instrument was named the Shehnai. So I suppose you understand this page, this part. Now let us come to the second paragraph. The sound of Shehnai began to be considered auspicious. Now what is the meaning of this word auspicious? Auspicious का मतलब होता है पवित्र, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा काम करना अच्छा होता है। जैसे आपको मामा ने बोला कि सुबह शाम आप पूजा करें, ये ऑस्पिशियस होता है, ये अच्छा होता है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। नाउ लुक एट दिस वर्ड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो आज जो नए टाइप की जो मैरिजेस होती है उसमें इंडिस्पेंसिबल है, मतलब शहनाई होती है कॉम्पोनेंट, एक पार्ट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडियन, हमारे नॉर्थ इंडिया में आज भी शादी जब होती है तो बाहर शहनाई वादक जो होते हैं वो शहनाई बजाते हैं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found
एट रॉयल कोर्ट्स। तो जैसे अकबर के टाइम में होता था ना नवरत्न, नवरत्न का मतलब द 9 ज्वेल्स, तो वो जो बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते थे उसी तरीके से 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे जिनको कहा जाता था नौबत। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और आज भी जो टेम्पल्स है उसमें शहनाई बजाई जाती है और जो वेडिंग्स है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। द क्रेडिट गोज फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ लुक एट दिस वर्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ हैव यू नोटिस्ड, ये जो उस्ताद होता है ये उर्दू में इसका मतलब होता है जैसे सर। हम किसी को पुराने ज़माने में अंग्रेज जैसे रविंद्रनाथ टैगोर तो सर की उपाधि देते थे, तो ये उस्ताद, उस्ताद मीन्स द वन हु इज़ अ गुरु, द वन हु इज़ अ टीचर, बिस्मिल्लाह खान। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ बिस्मिल्लाह खान, and it's really very interesting story. It's a story of a very simple and ordinary life with the richness of thoughts. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in ancient estate of Dumrao in Bihar. Now Dumrao एक बहुत छोटा सा शहर है बिहार में, और जब वो 5 साल के थे, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita. ये भोजपुरी चैता जो टेम्पल सॉन्ग्स होते हैं वो at the end of which he would earn a big लड्डू, और जब ये यहाँ पे वो प्ले करते थे, गाते थे, तो उनको क्या मिलता था, लड्डू weighing 1.25 kg, 1.25 kg का एक लड्डू, प्राइज गिवन टू बिस्मिल्लाह खान बाय द लोकल महाराजा। तो वहाँ के जो महाराजा थे वो उनको गिफ्ट में बजाने के क्या दिया करते थे, टेम्पल में एक 1.25 kg का लड्डू। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy had travelled far to earn the highest civilian award in India, भारत रत्न। अब आपको पता है भारत रत्न अवार्ड सिर्फ जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है उन्हीं को दिया जाता है, भारत रत्न। Now, when he was born on 21st of March 1916. Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. As we read that he belonged to the Dumrao city. Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, और उनके grandfather, इसका नाम हम नहीं भूलेंगे क्योंकि ये बहुत important है, इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श। नाउ इसको डोंट प्रोनाउंस इट बुक्स, से बख्श। रसूल बख्श खान वॉज शहनाई नवाज, शहनाई नवाज मीन्स द किंग ऑफ शहनाई ऑफ द भोजपुर्स किंग कोर्ट, एंड हिज फादर पैगम्बर बख्श। ये बिस्मिल्लाह खान के फादर का नाम है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के जो दादा थे वो ज़्यादा मशहूर थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है पैटर्नल और एक वर्ड होता है आपका जिसको आप बोलते हो मैटरनल, राइट। नाउ लुक एट दिस पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल का मतलब होता है जो फादर की तरफ से होता है, जैसे आपके चाचा, तो पैटर्नल, आपके दादा पैटर्नल। लेकिन अगर हम बोलते हैं आपके मैटरनल एंसेस्टर्स तो आपके नाना, आपकी नानी। Now, his father Pagambar Bucks and the other paternal ancestors were also great शहनाई player, और उनके जो दादा थे और वो जो उनके फादर थे वो बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। Now let us come to the ancestors का मतलब क्या होता है, ancestors का मतलब होता है हमारे पूर्वज। Now the young boy took to music early in life। अर्ली इन लाइफ का मतलब है कि बहुत कम उम्र में उन्होंने म्यूज़िक सीख लिया था, एट द एज ऑफ 3। नाउ देखो कितनी कम उम्र में उन्होंने म्यूज़िक से एक्सपीरियंस हुआ उनका, एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। नाउ जो पहले आपने पैटर्नल पढ़ा था वो अब आपका मैटरनल, मैटरनल मीन्स अपने मामा के घर। अंकल्स हाउस इज़ बनारस। नाउ बनारस इज़ नोन एज वाराणसी। वाराणसी आपको पता है बहुत फेमस है,
क्योंकि वहाँ वो आपके हिंदू के सेक्रेड टेम्पल्स है। नाउ बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड बाय वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस शहनाई, और जब वो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान के अंकल, तो बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे तो उनको देख के वो बहुत खुश होते थे। अली बक्स टू द विष्णु सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ जाने लग गए। कहाँ जाने लग गए? रॉयल कोर्ट में, जहाँ पे वो शहनाई बजाया करते थे, बनारस के मंदिर में जहाँ पे वो शहनाई बजाया करते थे। क्योंकि वो जो जगह होती थी जहाँ पे ये बनारस के घाट पे शहनाई बजाते थे, उनको टेम्पल्स होते थे और उनसे उनको बहुत पीस मिलती थी। देखो आगे इसमें लिखा है, नाउ सून बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शहनाई। तो अली बख्श जो थे उनको बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम मिला हुआ था। Ali Bux would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. Now when you say what is the meaning of this word, look at this word captivated. Captivated मतलब fascinated. Captivated means fascinated. What you call fascinated. Fascinated for hours on end मतलब जब वो अली बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान सुनते सुनते इतने जैसे उसमें खो जाते थे। Slowly he started getting lessons and playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. Now, इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या बताया है कि धीरे धीरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो शहनाई के लेसन्स थे वो मिलना स्टार्ट हुए, उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और कई सालों तक उन्होंने बालाजी के मंदिर में और मंगला मैया, ये दो वर्ड्स आप नहीं भूलेंगे, जहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस करते थे, दैट इज़ द बालाजी टेम्पल एंड दिस बालाजी, आई वुड अंडरलाइन Balaji and Mangla Maiya. So this is important. And the banks of Ganga become the young apprentice. Apprentice का मतलब होता है जो स्टूडेंट होता है उसको apprentice भी बोलते हैं. Favorites haunt, haunt का मतलब यहाँ पे वो haunted वाला नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रेगुलर जाते हो, where he could practice in solitude. Solitude का मतलब होता है शांति से जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise. Improvise to improve करना and invent और नए नए रागा. रागा मीन्स जैसे इवनिंग राग होते हैं, वेडिंग के राग अलग होते हैं, सैडनेस के जो राग होते हैं वो अलग होते हैं. तो पहले शहनाई पे सिर्फ एक ही तरह का राग गाया जाता था या शायद एक या दो तरह के राग गाए जाते थे, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक तरीके से म्यूज़िक के भी साइंटिस्ट थे और उन्होंने उस शहनाई से अलग अलग तरह के राग प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. सो द फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑफ द गंगा, और उनको इंस्पिरेशन किससे मिलती थी? वो जब गंगा नदी के किनारे सॉलिट्यूड में, पीस में, शांति से जब बैठते थे तो उनको इंस्पिरेशन मिलती थी टू मेक मोर एंड मोर रागास. Let us move to the next. Now, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. और जब वो सिर्फ 14 years के थे तो अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of the recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." और जो उस्ताद फैयाज खान बहुत बड़े उस्ताद थे, उन्होंने उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बहुत तारीफ़ करी. उस यंग बॉय की जो 14 इयर्स का था उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. यू शैल मेक इट मीन्स तुम बहुत मेहनत करो और तुम एक बहुत अच्छे शहनाई वादक बन जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938. नाउ दिस 1938
becomes important because that is the opening of All India Radio. All India Radio जो पहले टेलीविज़न नहीं थे, रेडियो ही होता था, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और इस समय बिस्मिल्लाह खान को एक नया ब्रेक मिलता है। बोलते हैं ना, ब्रेक मिलना का मतलब एक स्टार्टअप मिलता है। ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो सबसे पहले जो पब्लिक में उनको वास्ट स्केल पे सुना जाता था, वो कहाँ सुना जाता था? ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से उनके म्यूज़िक के जो रागाज़ होते थे वो ब्रॉडकास्ट होते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो शहनाई जैसे शुरू के अंदर आया था कि बड़ा ऑस्पिशियस म्यूज़िक होता है, इसलिए टेम्पल्स में, वेडिंग्स में और कोई भी ऑस्पिशियस चीज़ होती है उसमें शहनाई को हम काम में लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान ने भी जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट, उस दिन उस इंडिपेंडेंस का स्वागत किससे किया था? शहनाई से। ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू राग कैफ़ी KAFI, राग कैफ़ी। एंड कहाँ इन्होंने बजाया था? फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो 1947 15th of August when India gained its independence, Bismillah Khan welcomed independence of India by playing Shehnai, and this occasion was witnessed by the great leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, he gave his famous speech Tryst with Destiny. You must listen this speech. It's available on YouTube, and now if you want to listen to this speech, you can find amples of link there in YouTube. Now Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Abroad का मतलब होता है बाहर। इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in. Now look at this phrase, taken. Now this taken in. Now this taken in का मतलब क्या होता है? Mesmerized, hypnotized, attracted। देखो इधर इसका आपको मतलब दिया हुआ है at the right side of the page। taken in, attracted और charmed by। तो वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के किंग ज़ाहिर थे, ज़ाहिर शाह, उनको इतना अच्छा लगा बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन के बाय द मेस्ट्रो का मतलब जो उस्ताद होते हैं ना अपने म्यूज़िक में, म्यूज़िक मेस्ट्रो, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड द सुवेनीर्स। नाउ तो इतने खुश हुए उन्होंने वहाँ पे पर्शियन कारपेट्स और सुवेनीर्स का मतलब क्या होता है? कुछ मोमेंटोस जो आपको उस जगह की याद दिलाते हैं, दैट इज़ सुवेनीर, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। नाउ द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। तो बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूज़िक है, एम्पल करीब सारे रागास उनके यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वीडियो के बिगनिंग में जो आपने शहनाई सुनी थी, दैट शहनाई वॉज ऑल्सो संग बाय बिस्मिल्लाह खान। नाउ फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai। Now look at this, Goonj Uthi Shehnai। Now this Goonj Uthi Shehnai was the name of the film directed by Vijay Bhatt। The film was hit, and one of the Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khelona Hai, हाई टूट गया। नाउ दिस इट इज़ हाउ डू वी प्रोनाउंस? दिल का खिलौना हाई टूट गया। सो आई
Now I take a break here, and I want you to listen to this beautiful song. I have added in this video this 25-second clip, दिल का खिलौना हाय टूट गया. It's a old song. दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट. It was fine, I suppose. So now दिल का खिलौना हाय टूट गया turned out to be a nationwide chart buster. Despite this huge success in a celluloid world, Bismillah Khan venture in the film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram, Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Aparna. Now look at this word, this Goonj Uthi Shehnai. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने मूवीज़ में, हिंदी मूवी विजय भट्ट की गूंज उठी शनाई में म्यूज़िक दिया था, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो फिल्म थी सनादि अपर्णा. लुक, रिमेंबर दिस नेम, सनादि अपर्णा, सनादि अपन्ना, सनादि अपन्ना. This is the Kannada name, right? I just can't come to terms with the artificiality and the glamour of the film world. What he's saying, listen, it is very important. He's saying that artificiality, क्योंकि जितना भी आपका ग्लैमरस वर्ल्ड होता है वो सारा आर्टिफिशियल होता है ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ही सेज विथ एम्फेसिस, awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. तो इन्होंने केवल अफ़गानिस्तान नहीं, इन्होंने दुनिया के कई देशों में शहनाई के अपने प्रोग्राम किए हैं. And he was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall. Now this Lincoln Center Hall, must remember this Lincoln Center Hall in USA. He also took parts in the World Exposition in Montreal, I suppose it's in Canada, in the Cannes Film Arts Festival and the Osaka Trade Fair. So throughout the world, from France to UK to Afghanistan to the United States to North America, US and Canada, so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Now where is Tehran? Tehran ईरान की कैपिटल है, और उस ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा है? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. That is very important to remember. Let us go to the next slide. और नेशनल अवार्ड्स जो है वो तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बहुत मिले हैं. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर conferred on him, or conferred on him means was given to him. Now in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. तो इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है? वो है आपका भारत रत्न. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया, उनको भारत रत्न दिया गया. दैट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music, and this is fact that the West is now more interested in the traditional Indian art. Now they won't discard the traditional Indian art by saying that it is conservative or orthodox. They say that
It is the true art, it is the right art, it is the art from which many art can be manifested. Now, तो उस्ताद क्या मैसेज देते हैं? ये मैसेज देते हैं टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ. दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत का, हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. Now, in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सारी दुनिया में घूम लिए, लेकिन उनके लिए दो ही शहर सबसे इम्पॉर्टेंट थे, और वो थे बनारस एंड डुमराव. And they remained for him the most wonderful towns of the world. और हमेशा जीवन में उनके लिए ये दो शहर ही सबसे अच्छे शहर थे. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA. और एक बार उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि उस्ताद अमेरिका में मैं एक शहनाई स्कूल ओपन करूँगा और आप उसको रिप्रेजेंट करो. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating temples there. और उन्होंने यहाँ तक कहा स्टूडेंट ने कि चूँकि आपको मंदिर अच्छे लगते हैं, मंदिर में आप शहनाई बजाते हो, तो हम बनारस के जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे, यानी कि उनके जैसे टेम्पल्स हम यहाँ पे भी बना देंगे. बट खान साहब आस्क्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन उन्होंने देखो कितना अच्छा कहा. उन्होंने कहा कि चलो तुम टेम्पल तो बना दोगे, लेकिन क्या तुम जो गंगा नदी बनारस में बहती है और जिससे मुझे बहुत प्यार है, क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका में लेके आ जाओगे? लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री. तो वो बोलते हैं कि मैं जब भी फॉरेन कंट्री में बाहर होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और मेरा मन हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान जाने का करता है. और जब मैं मुंबई में होता हूँ, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा. और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुंबई में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनारस की याद आती है और गंगा की याद आती है. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव. इसका मतलब ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने बचपन से, अपनी ज़मीन से, अपने लैंड से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे. इवन बॉलीवुड की जो आर्टिफिशियलिटी है और अमेरिका और यूरोप का जो डेवलपमेंट है वो भी उनको पसंद नहीं आया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. और ये इससे पता चलता है कि एक डिवाउट मुस्लिम, एक जो बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन का है, टेम्पल्स हिंदू डेटी के होते हैं, लेकिन उसमें जो शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं वो मुस्लिम हैं, और वो एक ट्रू मुस्लिम है. और मुस्लिम होते हुए भी वो बहुत नेचुरली काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते हैं. एंड दैट शोज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इन दैट वे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आइकन of India that represent the true religious diversity. तो एक रीडर्स डाइजेस्ट में अक्टूबर 2005 में एक पेज के ऊपर देखिए, शेखर गुप्ता जो एक पत्रकार हैं, अभी एक उनका न्यूज़ चैनल है, आई सपोज द प्रिंट. तो उन्होंने पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान. जब पार्टीशन हुआ था 1947 का, तो इंडिया से बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए थे. तो उस्ताद क्या बोलते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस. आपको क्या लगता है मैं बनारस छोड़ दूंगा? नेवर. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस. मैं सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया हूँ. आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान.
I was there for about an hour, और मैं 1 घंटा वहाँ रहा. I say namaskar to Pakistanis and salam alaikum to Indians. I had a good laugh. So that short dialogue is also showing the nature, the nature of Ustad Bismillah Khan in terms of true patriotic. So I suppose that most of the things in the chapter is explained. Even if still there are problems, then we can take the individual problem in the problem class. Thank you.